Hi guys, today we have with us CMAT rank 1, Atharva. So Atharva, I wanted to share your story, कैसे पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा और आपके पेरेंट्स भी आज आए हैं. So ma'am and sir, I would like you to talk as well afterwards. कि because पेरेंट्स का सपोर्ट कभी कभी नहीं होता है. This is what I've seen, especially those who have waited for 4 years. तो उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट. तो अथर्वा, ऑन टू यू. कैसे अपने हाउ यू स्टार्टेड your journey, complete journey? Okay, so before MBA, I was actually preparing for UPSC. So that was since 2019. So I gave 3 attempts for that, and I cleared prelims twice, but I couldn't get through the mains. So this time, my mains was in September. So after giving mains, I realized that 1 or 2 papers have not gone well. So that means you are probably out of the race. It is that difficult. यूपीएससी का ये प्रॉब्लम है यार. इफ अगर तो क्रैक कर लिया तो तुम टॉपर हो सीधा, देन तो तुम्हारा वर्ल्ड इज एंड फॉर यू. लेकिन नहीं कर पाए तो अगेन यू आर बैक टू स्क्वायर वन. Yes, you are like back to nothing basically. So then I was thinking about what to do, and then I decided that I would pursue MBA. And finally the result came on December 7th. I exactly remember that, and I had not cleared as I had thought. So then I thought, okay, next year I will give CAT and I will see what happens. But then that happened last year की बात कर रहे हो आप? 22 की बात कर रहे हो. Then you plan to give the CAT and सारा CET all exams? हाँ, I thought I will give CAT in 2023. अच्छा, अगले साल दोगे? हाँ. So बीच में CET आया तो ऐसे दे दिया? हाँ, तो फिर मम्मी ने सजेस्ट किया कि देख लो अभी कोई एग्ज़ाम है क्या. तो 2 एग्ज़ाम्स बाकी थे. एक ZAT बाकी था और CET बाकी था. तो ZAT was in 1 month. तो that is very short time to prepare for anything. So what I did was I saw all the previous year questions. And then I started attempting one by one, and so my calculations was that there are 165 minutes and I need to get 41 marks for getting 99 percentile. You're talking about that? Yes, for that. I will tell the whole story of that because क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश का बेस वहीं पे बन गया और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसका बेस सब वहीं पे बन गया. तो कि for every 4 minutes I need to get 1 mark. So then I started attempting the papers. Then each section I used to calculate कि इंग्लिश में मेरा कितना मार्क्स पर मिनट बन रहा है, मैथ्स में कितना बन रहा है और डिसीजन मेकिंग में कितना बन रहा है. So by this time I had only 20-25 days remaining जब मैंने पूरा एनालाइज वगैरह कर लिया था. तो what I think is that instead of blindly practicing, you should do a lot of experiments. I think that 24 days you are just doing one thing, then that will not give you the results. You have to experiment a lot. So then I would first I would solve English in 60 minutes. Then I would see what is the marks per minute. Then I would do it in 40 minutes. Then I would see the marks per minute. I would do that for each section. Then I would attempt maths first. I would see that कि अगर मैंने maths बहुत attempt कर लिया तो मेरा rank क्या आ रहा है, marks क्या आ रहा है. So these are the number of experiments you should do. And in the and after giving mocks, then I used to analyze कि okay, what is the highest yield I will get, and I would focus on those topics only कि जो कर भी सकते हैं कम टाइम में और जिसका रिजल्ट भी आ जाएगा. And I allotted 1 week for maths, 4 to 5 days for decision making, and last 10 days I gave for verbal ability. And the result was also good. I got 99.25 percentile in that. But मेरा decision making का जो सेक्शनल कट ऑफ होता है दैट
आई थिंक 0.25 मार्क्स से हो रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मैंने लीव किया होता तो प्रोबेबली वही। अच्छा, अभी सीमेट का जो बारी आया, तो सीमेट के लिए यू स्टडीड फॉर हाउ लॉन्ग, 1 मंथ 2 मंथ, फोकस ऑन सीमेट? 2 weeks फॉर प्रोबेबली CMAT, बट मेरा CET का प्रिपरेशन दैट वाज फोकस 2 months, 2 months, क्योंकि CET में he got 99.94 percentile, 9.95 949 949 हो गया था। 94995। तो ही इज द ओनली गाय आई हैव मेट आफ्टर लॉन्ग टाइम जो JB जा रहा है थ्रू सीमेट आल्सो, थ्रू CET आल्सो। बोथ द स्कोर्स, बोथ द एग्जाम्स हैव क्लियर्ड द कट ऑफ रिकॉर्ड फॉर JBIMS, सो इज गोइंग टू JB थ्रू बोथ। तो सीमेट जो अभी 2 weeks पढ़ के सीमेट निकाला, सो यार पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि उसमें UPSC का भी तैयारी है, exactly. उसमें CET का भी तैयारी है, सो डोंट गो बाय दैट वर्डिंग के 2 हफ्ते में निकाल दिया। राइट, वो 2 हफ्ते में एग्जैक्ट का भी प्रिपरेशन है, मेरा पिछला UPSC का भी प्रिपरेशन है, और CET के भी फोकस 2 महीने, तो यू कुड से दैट इज 3.5 to 4 months Correct. फ्रॉम एग्जैक्ट यू शुड से। करेक्ट, क्योंकि आता है ये हर बार ना जो, और UPSC वाले टॉप करते ही करते हैं, CET हो गया, CAT हो गया, सीन मैनी पीपल। उल्टा भी है, जिसका गैप ईयर ज़्यादा है और आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो बिंदास वहाँ जाके बोलो, बिकॉज UPSC क्रैक नहीं कर पाई, इवन इट्स अ नेगेटिव पॉइंट, बट दैट विल बी काउंटेड इन अ वेरी गुड वे। क्योंकि जो हमने जो मोटी मोटी बुक्स देखी हैं, इन्होंने मोटी बुक्स असली में की हैं सारी, सो दे स्टडीड ऑल। उसका रिजल्ट नहीं आ पाया, वो बात अलग है, बट एटलीस्ट यू आर एबल टू क्रैक द अदर एग्जाम्स। राइट, So for the future also, those who have taken the gap year always say कि have taken the gap year because of job, because of this that, तो वो नेगेटिव नहीं है, that is a very good way, because आपका भी 3 साल का गैप है, अब अभी 4 हो गया, 4 साल का गैप होगा। From the he was working otherwise थोड़ा बहुत टाइम पास, but the main you are preparing for the UPSC। मेन वाज UPSC। तो every इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आने वाला है, so how you say it in the positive और नेगेटिव वो तुम्हारे हाथ में, राइट, ठीक है। तो दिस इज वन एग्जाम्पल आई गिव टू एवरीवन, बिकॉज हर एक के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। लाइक आई हैड अ स्टैमरिंग इशू, आई हैड अ मेजर स्टैमरिंग इशू। सो ये आप हो, और हर एक बंदे के पास उसके डीमंस हैं। मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे का ये प्रॉब्लम है, मैथ्स नहीं है, मेरे वर्बल नहीं है, किसी का ये कोई अच्छा बोलता नहीं है, कोई अच्छा दिखता, हर एक के कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखती है। वी ऑल हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स। तो ये डीमंस के साथ क्या किया जाए, उसको मान नहीं सकते आप, बिकॉज अ बिग डीमन, और तुम छोटे हो, क्या करोगे? जहां तुम जाओगे ये साथ में रोप के साथ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, क्या किया जाए? एनी गेस, क्या करना है डीमन के साथ? इंप्रूव करने की कोशिश करो, तुम नहीं कर सकते। आई ट्राइड दैट। जिसका मैथ्स वीक है, सारी उम्र मैथ्स वीक ही रहेगा, हर एक की जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ही रहेगी। क्या किया जाए? तो ये साथ तो आएगा ना, जिधर भी जाऊंगा पीछे पीछे साथ में आने वाला है। आई कैन फोकस ऑन अ बेटर थिंग, बिग फ्यूचर, बट ये जो रस्सी बंधी हुई है, ये डीमन मेरे साथ आने वाला पीछे पीछे। यू कैन रन अवे वॉट एवर, पीछे खड़ा रहेगा वो सारी उम्र। क्या किया जाए? एक्सेप्ट इट, अंदर आके बैठ जाओ उसके अंदर। क्या किया जाए? ऑल आई नीड डू इज ब्रेक द रस्सी, एक्सेप्ट इट, break the रस्सी। the day I broke it, I broke my रस्सी with stammering in the first year of MBA। सारी उम्र में भागता रहा, इंटरव्यू देता था, ये नहीं करता था, वो नहीं करता। एक दिन लगा कि बस यही प्रॉब्लम है ना, है रस्सी तोड़ दो, डर छोड़ दिया, उसके बाद है अब क्या कर सकते हैं। तो सेम वे द मोमेंट यू एक्सेप्ट दिस थिंग, दिस फॉर एवरीवन। गैप ईयर 1 साल का है, 2 साल का है, एक बार तुमने एक्सेप्ट कर लिया इंटरव्यू में आके, देन इट्स नॉट नेगेटिव पॉइंट, इट्स माई पॉजिटिव पॉइंट कि इवन दो आई हैव टेकन द गैप ईयर, आई एम स्टिल हियर। ठीक है, तो प्लीज स्टार्ट टेकिंग एवरीथिंग इन अ गुड वे। सॉरी, कैरी ऑन। तो फिर सीमेट और CET के लिए कैसे आपने जंबल किया? तो जैट का मैं पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, और मैंने इंटरव्यू का वो जो कोर्स होता है वो भी खरीद लिया था और पढ़ना भी शुरू कर दिया था। पर मुझे लगता है 26 जैन तक वो रिज़ल्ट आ गया, तो उसमें भी निगेटिव आ गया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी वो अगर जैट चला गया है तो मेरे पास एक एग्ज़ाम है, उसके लिए मेरे पास लगभग 50-60 डेज़ है, तो उससे एक अच्छा हो गया कि मैं अभी पूरा फोकस में CET पे डाल सकता हूँ जो करना है। तो फिर मैंने वैसे ही किया कि फर्स्ट मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, क्योंकि दे आर द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स की व्हाट CET एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। पेपर तो कुछ अलग ही आया, मेरा स्लॉट 3 था तो वो कुछ अलग ही हो गया। इस बार मैंने क्या किया, CET स्लॉट 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों का पेपर तैयार
करवा लिया। एंड द बेस्ट पार्ट इज 5 अलग पेपर है, 1 में कुछ और बोल रहा है, 2 में कुछ और है, 3 में कुछ और है। सो यू हैव टू डू ऑल द 5 पेपर टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा पेपर क्या आएगा। राइट, सॉरी। राइट, तो फिर मैंने वैसे ही चालू किया अटेम्प्ट करना वगैरह। तो मेरा स्टार्टिंग में PYQs में 120 आया था, स्कोर 120 आ गया था, और पर कभी कभी वो 95-100 पे भी गिरा है। दैट इज़ बाय जनवरी एंड। फिर मैंने वो वापस सेक्शनल जो मैंने एनालिसिस है वो मैंने वैसे ही स्टार्ट किया। तो मैंने उसको कैसे ब्रेक किया था ब्रॉडली कि वर्बल है, वर्बल है, उसमें मैंने पहले ब्रेक किया कि RC एक सेक्शन है और अदर्स अलग सेक्शन है। फिर एब्स्ट्रैक्ट आया, मैथ्स आया, और फिर लॉजिकल रीजनिंग है। फिर उसमें मैंने टॉपिक वाइज देखा कि पजल्स का एक ग्रुप बन जाता है, बाद में सेकेंड आता है कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, और फिर अदर्स। फिर मैंने वही पूरा मैं डेटा के ऊपर ही गया कि मुझे कौन सा मार्क्स पर मिनट सबसे ज़्यादा दे रहा है, मैं वही अटेम्प्ट करूँगा। फिर मतलब अगर आपने ऐसा एनालिसिस किया ना तो काफ़ी काउंटर इंट्यूटिव चीज़ें आपके सामने आती है कि मुझे लगा था कि इनपुट आउटपुट ठीक है, तो उससे पर क्या होता था कि उसे यील्ड नहीं आ रहा है उतना। मतलब मेरा मार्क्स पर मिनट वो वापस 0.6 या 0.7 बन रहा था, पर RC देख के लगता है कि अरे इसमें तो काफ़ी मिस्टेक्स हो रही है अगर मैंने कम टाइम में किया तो। पर उसका मार्क्स पर मिनट बहुत अच्छा आ रहा है, तो जो यील्ड आ रहा है ना वो बहुत अच्छा आ रहा है। सो यू टू रिकॉर्ड ऑल दिस थिंग्स समवेयर कि मार्क्स पर मिनट कितना है, ये कितना है। हाँ, मैं ऐसा शीट बना, हाँ ये मेजरली मैंने स्टार्टिंग के 10-15 के आसपास किया था, क्योंकि बाद में वो पता चल गया आया था। राइट। So first 10 minutes, 10 mocks. If I can do marks per minute. Yes. Marks per minute. Yes. Topic wise. पर इतना भी नहीं कि 20-25 टॉपिक्स आप कर रहे हो। Correct. ब्रॉडली मैंने जो लॉजिक में कितना आ रहा है? 8 to 10, हाँ 8 to 10 मैंने बता दिए। Is equal to 99.95 percentile. हाँ। In CET. ठीक है, तो ये एनालिसिस करना इज वन गुड वे टू अंडरस्टैंड। अभी तुम्हें तो मालूम हो तुम्हें क्या आता क्या नहीं आता। अब जैसे किसी का इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, वर्बल इज वेरी गुड, बट वर्बल में जब तुम्हारे टाइम स्पीड की प्रॉब्लम आ रही है तो तुम क्या उखाड़ लियो, फिर क्या फायदा। वी नीड टू चेंज द स्ट्रेटजी। राइट। फिर पर ये भी कैसे कि ये एनालिसिस एक पॉइंट तक ठीक है, पर उसके बाद आपको फिर मैं सीटिंग के मॉक्स भी देता था और 2 इंस्टीट्यूट्स के भी मैं मॉक्स देता था। तो उसमें आप दिखता है कि हाउ मच यू हैव यूटिलाइज्ड एंड व्हाट इज़ द एवरेज। तो फिर उससे भी मैं कंपेयर करता था। फिर मुझे समझ में आया कि मेरे कौन से टॉपिक्स मतलब ख़राब है। तो उसमें मैथ्स का मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, ऑलमोस्ट 90 to 95% एक्यूरेसी थी, पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था उसमें। तो फिर वो मैंने प्रैक्टिस कर करके वो टाइम रिड्यूस किया। तो फिर वो रिड्यूस करने के बाद ऐसा हुआ कि उसमें जो मार्क्स पर मिनट है वो मेरा इनपुट आउटपुट वगैरह के से ऊपर चला गया, पजल से ऊपर चला गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि ये टॉपिक्स लास्ट में ही करने, और मतलब और एट दैट टाइम यू शुड नॉट बी इमोशनल कि अरे मुझे अच्छा ये टॉपिक लगता है तो मैं वही करूँगा। और मतलब उसकी डिफ़िकल्टी भी काफ़ी वेरी हो सकती है। तो यू कैन नॉट बी इमोशनल कि अच्छा मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया है, इसमें कितना भी टाइम लगे मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। दैट इज़ नॉट ऑप्टिमम एट ऑल। So you should only do what give you the best results. That should be your only focus. फिर like every question I used to think कि okay, I have taken 60 seconds for this question. What can I do to solve this question in 50 seconds? Then I should think कि then one column I had made that was silly mistakes. You have not read the questions correctly. Then you have missed one line. So that these are the silly questions, silly mistakes you are doing. And वो भी मेरा 4-5 आ रहा था। तो वो सिडनेम और जेबी में डिफरेंस वही है कि वो जो 4-5 मार्क्स का तो आप चले गए फिर उस वो गैप के वजह से। और आपने CMAT का तैयारी, यू जॉइंड अवर प्रोग्राम
कब आपने ज्वाइन किया था? बिकॉज आई सॉ यू मार्च के स्टार्ट में मैंने मतलब मॉक्स जो है वो मैंने पहले स्टार्ट किया मॉक्स था। पहले शुरू कर दिए थे हाँ, एंड क्रैश कोर्स बाद में ज्वाइन किया लास्ट में आके, मार्च में आके मैंने ज्वाइन किया था वो। जब सीईटी का फॉर्म आया था। फॉर्म कब आया सीईटी का? लेट आया था बट भी नहीं, मार्च में आ गया था, टाइम पे फॉर्म तो टाइम पे ले लिया था उन लोगों ने। हाँ, सो जॉइंड अस फॉर 1 मंथ प्रोग्राम, लास्ट 1 मंथ प्रोग्राम, लास्ट 1 मंथ। मतलब मुझे समझ गया था कि जी स्ट्रेटजी वाला अपना जो, हाँ, जी स्ट्रेटजी के नाम पे ही पब्लिक, यार देखो सबको पता है कि कुछ मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। हाँ। जिसको जो आता है वो आता है, जिसको जो नहीं आता वहाँ पे तुम्हें शॉर्टकट लगेगा ही लगेगा। यू नीड टू इम्प्रूव दैट एरिया। पर मैंने जी स्ट्रेटेजी के ज़्यादा वो उससे ज़्यादा मैंने मैथ्स के वीडियोस काफ़ी देख लिए, क्योंकि मुझे समझ गया था कि मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और पजल्स वो थोड़ा बहुत डाइसी हो जाता है। हाँ? और ऊपर से आ गया थर्ड स्लॉट 3 में इस बार सीईटी में देवर 85 क्वेश्चन मैथ्स। तो भाई ने मैथ्स पे फोकस किया तो उसको एडवांटेज हो गया वहाँ पे। उसको एडवांटेज हो गया और वही मैं लास्ट के 10-15 दिन मैं सिर्फ मैथ्स कर रहा था। और सब इजी थे, ऐसा नहीं कि बहुत 85 टफ थे, मोस्ट ऑफ देम वर इजी क्वेश्चंस। तो तब मैं आपको कह रहा हूँ कि जिसको मैथ्स का डर है वो डर छोड़ दो, करना तो पड़ेगा भैया, खुशी खुशी करो, रो के करो, करना तो पड़ेगा मैथ्स। फाइन, सो आई कैन प्रॉमिस दैट कि वी कैन मेक मैथ्स थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन था भारी वाला, ये तो नहीं हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल टू सॉल्व इन द टाइम वी हैव, बट जो इजी क्वेश्चन आएगा विल सॉल्व एवरीथिंग। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन विल लीव। सीईटी में कोई ऐसा टॉपिक है तो तुम छोड़ के गए थे? नहीं, मैं उसी पर आ रहा था कि मैंने ये सब एनालिसिस तो कर लिया, पर और फिर मैंने ये भी देख लिया कि कौन से टॉपिक्स नहीं करने, पर क्या हो सकता है एक आध बार की मैंने मॉक्स में भी देखा कि जो टॉपिक्स आप छोड़ के गए हो ना उसमें से इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप में वो इंट्यूशन होना चाहिए कि मुझे टॉपिक्स अच्छे नहीं लगते, पर ये क्वेश्चन जो है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है कि ये उन्होंने इजी डाला है तो मैं वो नहीं छोड़ सकता। तो फिर मैंने जो टॉपिक्स नहीं आते थे वो करने सब स्टार्ट किए। तो ब्रॉडली वैसे ही था कि मैथ्स के कुछ टॉपिक्स है उसमें टाइम काफ़ी लग रहा है वगैरह वैसे, और फिर पजल्स। तो ये 2 मेन रीजंस थे कि मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। तो और मैंने उसके ऊपर भी काफ़ी प्रेप किया था पजल्स पर। फॉर्चुनेटली पजल्स आए नहीं लास्ट में। सो पजल्स एंड मैथ्स इज अ सीईटी का मेन प्रॉब्लम। सीमेट की बात करो तो इस बार का जो मैंने सबका पेपर देखा है, जीके एंड इंग्लिश, इधर ही पब्लिक का स्कोर गया है और दोनों में इसका अच्छा था। सो जीके एंड इंग्लिश, ठीक है, विल गो टॉक अबाउट दैट एज वेल। सीमेट में जब आपका रैंक 1 आया, हाउ आर यू फीलिंग? जैसे जो पता लगा कि 1 हो गया तो व्हाट आर द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माइंड? फर्स्ट वाज डिसबिलीफ, बिकॉज लास्ट ईयर जो है टॉपर वाज 347 एंड कट ऑफ वाज 340। तो मैंने आंसर की देख के मेरा 291 आ रहा था। तो मैंने घर पे बोला भी था कि अभी इसमें 300-400 रैंक आने वाला है, तो ये तो गया, अभी जाने दो, अपन सीईटी पे होप्स रखते हैं। इसको कहते हैं ईमानदारी। मुझे लगा था बोलेगा अरे मैं तो बचपन से ही टॉपर था, ये था वो था, बिकॉज वेन ही मैसेज में ना ऐसे कॉन्वर्सेशन दिस एंड उसका पहला क्वेश्चन इतना रैंक 1 कैसे आ गया? क्या भाई इसको विश्वास, पहला चीज ये होता है। आई वो सीईटी 3rd रैंक, तो मुझे वही विश्वास ही हुआ कि ये कैसे हो गया। सो डोंट आस्क कि रैंक कैसे आ गया। हार्डवर्क क्या किया वो वी कैन टेल, बट वो रैंक ऊपर वाले के हाथ में है। सो 99% तक सीईटी में इज योर हार्डवर्क, उसके आगे सीईटी सीमेट जो भी एग्जाम बोलो उसके आगे इज प्योरली ऑन लक। सो लक इज ऑलवेज देयर। और इसमें भी कैसा था कि मैं आपको मिलने आया था तभी मैं कंटिन्यूसली सीईटी किंग के मॉक्स में मैं टॉप 3 में रहता था, और आई थिंक 30-40% मैंने टॉप भी किए थे। तो मैंने सर को पूछा, सर अभी मैं और क्या कर सकता हूँ कि मैं कंसिस्टेंटली टॉप कर सकता हूँ? तो सर बोले कि देयर आर 200 to 250 पीपल जो तेरे लेवल पे है, अभी उनमें से जो 60-70 लोग हैं जिनका दिन होगा उस दिन, तो दे आर द वंस हु विल गेट इन। तो मैंने क्या किया कि मैंने दिन बढ़ा दिए, मतलब मैंने एग्ज़ाम्स बढ़ा दिए। मैंने मैट दिया 2 बार, मैंने एटमा दिया, मैंने सीमेट दिया, सीईटी दिया। तो कैसे हो गया कि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, तो आपका लक का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाता है। सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी। और सीमेट में कैसे, सीमेट में ये काम नहीं करेगा मार्क्स पर, क्योंकि दैट इज़ प्योर एक्यूरेसी गेम। तो मैं एक्चुअली वो सोर्सेस बोल सकता था, पर शायद ठीक है, अभी इन जनरल कुछ है गूगल, हाँ गूगल पे है तो बता दो ना, गूगल का तो कर सकते हैं हम। मतलब वो कैसे था कि यूपीएससी के वक्त मैंने जो पढ़े थे
और जो मुझे यूटिलाइज हो गए तो उसके काफ़ी सोर्सेस थे, और वो शायद बाद में कर सकते हैं कि ठीक है, योर विश। नहीं तो बोल दो, हम जो काटना हो काट लेंगे। काटना अपने हाथ में ना। अ, जीके के लिए मेरे को थोड़ा एक मोटा मोटा सोच बता दो कि अगर मैं सीमेंट की तैयारी कर रहा हूँ तो जीके मैं कहाँ से करूँ, क्योंकि जीके इज वन ऑफ द मेन पेन पॉइंट। वही मेरे काफ़ी सोर्सेस थे मेरे, मतलब जो यूपीएससी के है ना वो टॉपिक्स के लिए, तो उसकी मेरे पास बड़ी लिस्ट है। तो लिस्ट अगर आप मेरे को हाँ, बता दोगे, शेयर कर हाँ। दोगे, आई शेयर लिस्ट विद यू। राइट, ठीक है। सीमेंट का ना जो एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन है उसका मैंने एक बाइबल निकाल दिया 18 पेज का, हाँ, विद उसमें से काफ़ी आए थे पूरा questions। पेपर उसमें से उसके टाइप पे आने वाला है, तो दैट आई हैव गेन कॉन्फिडेंस कि वो करो तो तुम्हारा कट ऑफ निकल जाएगा। जीके में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी तक, तो इफ यू कैन हेल्प मी मेक दैट थिंग हाँ। जीके बाइबल टाइप, हाँ जितना छोटा उतना बेटर। अरे नहीं तो सर, वो वो- छोटा नहीं है। कोई प्रॉब्लम है जीके में जितना, अब बड़ा खोलेगा नहीं कोई, 500 पे देगा कोई आएगा नहीं वापस, ऐसे 100 पे तक को दे दो तो अपन वी कैन डू समथिंग, सो विल थिंक अबाउट दैट, वो बाद में देखते हैं। हाँ। पर जीके निकालना पड़ेगा, जीके का ओनली अलग फैक्टर, बाकी सब कुछ सेम है सब में, मैथ्स वर्बल लॉजिक हर एक का सेम होता है ऑलमोस्ट। उसमें कैसे कि अगर पर आपके पास टाइम हो ना सपोज, तो आप सीईटी के स्टार्ट, जब सीईटी है उसके साथ भी आप 2-2 घंटा दे सकते हो जीके पे तो जीके पे दे सकते हो। पर अभी वही गारंटी नहीं, क्योंकि मैंने वो 3 साल पढ़ा है तो वही पूरा यूटिलाइज 3 हो साल गया। जीके पढ़ा जिसने, उसको भी कांट कम्पीट ना। तो हमें टॉप नहीं करना, हमें बस वो एक्स अमाउंट चाहिए, तो उतना अगर लेके आ जाओ तो दैट थिंक 100 पेज इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दैट, इफ यू कैन बिल्ड समथिंग लाइक दैट। So we'll think. I want to invite mom or dad, someone to come on and talk for 5 minutes, 2 minutes. सर मेरे को आपसे जो मेन क्वेश्चन है कि नॉर्मली पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू फॉर द स्टूडेंट टू वेट दैट लॉन्ग, आपने 4 साल उसको वेट करने दिया, सो व्हाट वाज योर गोइंग ऑन द माइंड? बस उसका पेशेंस हम लोग ने देखा, यूपीएससी के लिए डेडिकेशन देखा, सैक्रिफाइस देखा, लिटरली सैक्रिफाइस देखा। वो आए ना आए, यूपीएससी इज़ टोटली डिफरेंट, राइट? बट उसको हम लोग 1% भी बोल नहीं सकते कि तूने ये नहीं किया उसके लिए ये हो गया, नेवर। सो ये उसका प्लस पॉइंट था। अभी दिसंबर का उसका यूपीएससी का जब आ गया, तब उसके पास कुछ भी नहीं था। ही इज़ ओनली बीकॉम, राइट? 3 इयर्स उसका गैप है। उसके साथ के सब जन अच्छे पोस्ट ग्रेजुएशन हो गए, बराबर है, और उसका करियर फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड एकदम अच्छा है, और फिर ये डाउनफॉल भी उसने देखा है। सो वो डिप्रेस नहीं हुआ, दिस इज़ द प्लस पॉइंट। वो उसने क्यों अचीव किया? क्योंकि वो डिप्रेस नहीं हुआ। एक एग्ज़ाम ऑनलाइन 25 मिनट्स के बाद में ऑफ हो गई बिकॉज ऑफ लाइट, लेकिन वो कूल था। दिस इज़ द प्लस पॉइंट। तो आपको इतना ही रखना है कि ये प्लस पॉइंट रखो कि डिप्रेस नहीं होना है, कुछ नहीं। कोई भी एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम नहीं होती है, ये ध्यान में रखना। कोई भी एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, पूरे आपके लाइफ के इसमें भी नहीं होती है। और ये आपका मेजरमेंट नहीं हो सकता है कि आपने एक एग्ज़ाम नहीं की उसके लिए आप बहुत ख़राब हो, या ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग का फेथ था कि जो कुछ करेगा अच्छा करेगा। बीकॉम करने के बाद में भी अगर उसने कुछ सोचा होगा ना, तभी भी वो अच्छा ही करता। ऐसा नहीं है कि वो एमबीए कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो खाली बीकॉम रहेगा और कुछ भी करेगा ना, तभी भी हम लोग को मालूम है कि वो अच्छा करेगा। बस इतना उसके ऊपर हम लोग का फेथ है। सो उसने जो कुछ किया, डेडिकेशन किया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हिज यानी वो बहुत ही ज़बरदस्त है पढ़ाई के बारे में, ऐसा नहीं है। बट वो क्या बोलते हैं ना, चिपके रहता है वो चीज़ को, और वो कर देता है। वो चेस भी खेलता है तो 4-4 घंटा वो मैच खेलता है। सो उसका बहुत सारा प्लस पॉइंट है, और उसको जो मार्क्स मिलता है उसके लिए उसको ईगो नहीं है। 1 मार्क का भी उसको ईगो नहीं है फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से बोल रहा हूँ कि उसको 1 मार्क का भी ईगो नहीं है। और उसका क्या बोलता है, एग्जाम्पल लेके किसी को बोल दिया किसी पेरेंट्स ने या हमारे रिलेटिव्स ने, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। दिस इज़ द प्लस पॉइंट। सो आप इतना ही करो, आप जो कुछ कर रहे हो
क्योंकि आपके माँ पिताजी फीस भर रहे हैं, तो उनको 100% दे दो। माँ पिताजी खाली खाना पीना दे सकते हैं और आपका फ़ीस भर सकते हैं, राइट। बाकी सब आपको करना है। आप मन लगा के पढ़ाई करो, बाकी कुछ नहीं होता है। ये 1 और 2 ये नंबर है, बराबर है। आप आपके लिए एकदम प्योर रह लो कि मैं जो कर रहा हूँ वो बराबर है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। सर आई वन मोर क्वेश्चन। ये तो आपने इनको एडवाइस दी बच्चों Yes. को, पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस होगी? बिकॉज नॉर्मली आपने वो बोला कि इसके दोस्त आगे से आगे निकल गए। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टॉन्ट पेरेंट्स गिव, कि वो देखो उनका बच्चा वहाँ निकल गया, तुम्हारा दोस्त यहाँ चला गया। सो पेरेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस अभी दोगे? इतना हो गया यूपीएससी ना, वो तो 10th में एकदम टॉप है, 12th में उसका मार्क्स अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और बीकॉम के बाद में यूपीएससी 3 साल कुछ नहीं हो रहा है। सो हम लोग को बाद में बोलना पड़ा कि वो उसके दोस्त के साथ सीए फर्म में एक जॉब कर रहा है करके। इतना हमारा बुरी हमारी हालत थी, हम लोग को बोलना पड़ा कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो अभी जॉब कर रहा है करके। सो हम लोग ने भी एकदम खराब पीरियड निकाला है वो चीज़ का। Yes. तो माँ पिताजी लोगों ने लड़के के ऊपर एक तो फेथ रखना चाहिए, और लड़के ने भी उतना ही देना चाहिए बस। और माँ पिताजी ने थोड़ा सा फेथ रखना ही चाहिए, थोड़ा सा गाइडेंस, यानी मॉरल सपोर्ट। पढ़ाई करने के लिए हम लोग तो नहीं बैठ सकते, बराबर है, बट ऑब्वियसली जैसा हम लोग ने सपोर्ट दिया है, हर एक माँ पिताजी सपोर्ट देते ही है। खाली एक एक का अलग अलग क्या बोलता है कि अलग चीज़ होती है एक्सप्रेस करने की, बस दैट्स इट। वो आप भी समझो, आप आपके माँ पिताजी के साथ रहो, और उनके लिए नहीं, आपके लिए करो जो कुछ करना है वो। उनके लिए नहीं, उनका हो गया सब कुछ, बराबर है। और बस इतना ही। ऑल द बेस्ट आपको भी, सबको। थैंक यू, बराबर है, राइट सर। थैंक यू। How has CE helped in this journey? If you want to summarize something. First was because of mocks, like they are very realistic. मतलब कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ लोग एकदम एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट दे देते हैं या फिर एक्सट्रीमली ईजी देते हैं, बट आई थॉट कि सीटिंग वॉज वेरी बैलेंस्ड इन दैट, सो दैट वॉज दोज मॉक्स आर वेरी गुड। और उसमें कैसे कि यू कैन कंपेयर योर सेल्फ विथ द टॉपर्स, यू कैन कंपेयर योर सेल्फ विथ वट इज़ द एवरेज, एंड व्हेन यू कीप मेजरिंग एंड देन यू हैव टू सी कि हाउ यू कैन इम्प्रूव। सो आपके पास वो सब पूरा डेटा है कि आप कैसे मेजर कर रहे हो, आपके पास वो CET किंग दे देगा। एंड लेक्चर्स वगैरह, सो दीज आर वेरी गुड। जो डैशबोर्ड पे दिया है आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो, आप उससे नोट्स निकालो जो और वो रिवाइज करते रहो। मतलब मैथ्स में कैसे कि जो लेक्चर्स है दे विल हेल्प यू अ लॉट इन, जो 2 मिनट्स में होना चाहिए, 2 मिनट्स में आपका हो रहा था, वो अगर आपको 1 मिनट में करना है, तो इफ़ यू गो थ्रू द लेक्चर्स यू विल प्रैक्टिस, सो दैट विल हेल्प अ लॉट। एंड व्हाट वाज आई थिंक, और मैंने CET किंग के लिए यूज़ किया था एक CMAT के वक्त, मैंने करंट अफेयर्स के आई थिंक 5-6 मंथ्स के मैंने लास्ट 6 मंथ का PDF, जो करंट अफेयर्स का था वो मैंने किया था। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाइबल, उसमें से आए थे काफ़ी क्वेश्चंस, सो दैट वाज दैट। और हाँ, पजल्स उससे एक ऑनलाइन आते हैं, वो आई थिंक ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम JB कि सर जो आते हैं। हाँ, तो हाँ, वो कौन सर की बात पे मुझे पता नहीं, बट हाँ ये मोस्ट ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग के जो सर हैं, तो उन्होंने भी पजल्स बहुत अच्छे से किया है। इफ़ यू गो थ्रू दैट, सिर्फ ऐसे नहीं कि मैंने फार्मूला देख लिया वगैरह, ऐसे सी हाउ दे आर थिंकिंग, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि you understand how they are thinking, how they are approaching that question, and based on that like you are, इसमें ऑलमोस्ट ऐसा है कि अगर आप एफर्ट डालोगे आपको रिजल्ट मिलेगा जनरली। एंड फाइनल एडवाइस इज गिव मल्टीपल एग्जाम्स। ऐसा नहीं कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो सिर्फ कैट देते हैं और बाकी के एग्ज़ाम्स नहीं देते। कुछ लोग हैं जो सिर्फ CET पे फोकस करते हैं, बाकी पे नहीं करते। पर वो 2 आवर्स कैसे, 2 आवर्स में कुछ भी हो सकता है।
यू कुड बी हंग्री, शायद एक रात पहले आपकी नींद नहीं हुई, आपको फोकस नहीं हो रहा है, एनीथिंग कैन हैपन. सो इट इज़ बेस्ट दैट यू गिव मल्टीपल एग्जाम्स. जो भी एग्जाम्स आपके सामने आ रहे हैं, गिव ऑल ऑफ देम. और व्हेन यू आर गिविंग मॉक्स, डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आई सेड. एंड ऐसे भी कंडीशंस में करो कि यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग एंड देन गिविंग मॉक्स, यू आर स्लीपिंग barely 2-3 hours and then you are giving mocks, because then you are prepared mentally कि लास्ट दिन पे कुछ भी हो जाए, मैंने ये किया हुआ है और मुझे पता है कि हाउ टू गेट थ्रू दिस. क्योंकि स्लॉट 3 का पेपर जब आया था ना CET का, तो समझ रहा था कि दिस इज़ डिफ़िकल्ट पेपर. और वो पेपर देख के मुझे समझ गया था कि 150 to 155 विल बी द ऑप्टिमम अटेम्प्ट. और मेरा फाइनली उतना अटेम्प्ट भी 153 हुआ, जो ऑनेस्ट अटेम्प्ट है वो 153 हुए, और बाकी के मैंने CC कर दिया था. तो पर ये क्या हो सकता है कि अगर एकदम आप टफ पेपर देख लो तो आप वहाँ पे मतलब आपका कॉन्फिडेंस चला जा सकता है, और फिर वो जो 5 to 10 मिनट्स का अगर लैप्स हो गया तो वापस जेबी चला गया. आपने एक टॉपर की भी स्टोरी डाली थी कि उसका जो फर्स्ट पजल था उसमें उसका मार्क्स चला गया. हाँ, अमित धात्रक, उसका इंटरव्यू है, यू कैन वॉच द इंटरव्यू. मैंने वो भी देखा था, तो उससे मुझे पता था कि एनीथिंग कैन हैपन, बट यू शुड गो थ्रू अ लॉट ऑफ इजी पेपर्स, अ लॉट ऑफ मॉडरेट पेपर्स एंड सम वेरी टफ पेपर्स. कि जब एकदम टफ पेपर आएगा देन यू विल नो हाउ टू हैंडल इट. दैट्स ऑल. और आपके लॉगिन में हमने क्या किया, सब पेपर को इकट्ठे कर दिया. अभी ये नहीं पता तुम्हारा अगला पेपर इजी होगा कि टफ होगा, सो दैट यू आर टोटली प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ अ पेपर. दैट आई विल टेक केयर ऑफ. द ओनली थिंग जो इनका मेरे को जो बेस्ट लगा कि तुम बस घुस जाओ अंदर. सो यू हैव टू स्टिक टू इट टिल द एंड. एक स्टूडेंट 4 एग्जाम देगा, एक तो निकलेगा ही निकलेगा. तो वो कैट निकले या CET निकले, वो देखा जाएगा जो निकलेगा. राइट. ठीक है, बट जस्ट कीप हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड. हाँ. थैंक यू यार, थैंक यू. एंड वर्क हैड लाइक क्रेजी. मतलब आई डोंट रिमेंबर कि मैंने जनवरी 26 से लेकर CET का डेट 26 था, तब तक मैंने एक भी दिन ऑफ लिया है. एक भी दिन ऑफ नहीं. और मतलब रोज़ एक टेस्ट देना है. तो मेरे वैसे 55 to 60 मार्क्स हो गए थे. एंड लाइक देयर शुड बी नो रीज़न कि यू आर अननेसेसरीली टेकिंग ऑफ. एंड यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल टू वर्क हार्ड. मतलब ये जो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मेरा क्या बर्नआउट हो गया, बर्नआउट हो गया कि मेरा बर्नआउट हो गया. पहले आप बहुत मेहनत कर लो, फिर बर्नआउट हुआ तो ठीक है, पर बर्नआउट के चक्कर में लोग मेहनत नहीं करते. तो पुश योर सेल्फ टू द लिमिट. मतलब देन यू विल गेट थ्रू एनीथिंग. मतलब अगर सपोज ये भी नहीं हुआ, यू हैव डेवलप्ड दैट वर्क एथिक दैट you will generally get through like other exams also, if not this. That's all. Thank you, thank you. A small gift. Thank you, sir. So that was CMAT rank 1 100 percentile and CET 99.95 percentile. That 99.20 percentile. 25. 25 percentile. Thank you, thank you. Thank you, sir.